incident today. What do you want to say that total incident with the governor of ex-governor of Satpal Malik? I think so. The ex-governor has really opened up, thrown a big bomb today. And I hope that, the BJP people, the bucks that are there who've been following them so much should realize that, our present situation right now. The people of Goa are really, really suffering. And he spoke about two important things. One is the border, and the second is the door-to-door, ration which is supposed to be provided to the people. My father passed away in the pandemic in May. Just few days back, we completed 5 months of his death. And it's so heartbreaking because, like me, a lot of families in Goa also lost their dear ones when we've been screaming and shouting to close border on time. And that was not being done. Parties were happening, borders were open up, all the mining trucks were coming in, everything was happening. But public safety was not given importance. And that's why we saw the second wave hit Goa so hard in April and in May. And my father was one of the victims of it. I was in JMC for 14 days with my parents because both were affected. And I know that how beds are not available. My parents were told to sleep on the floor. Medicines were not available in the government's hospital. Prescriptions were told to buy from out. Okay, we can afford, but what about the poor people? They couldn't afford and they've been suffering a lot. And during the cyclone, my father was in the ICU and there was water filled in the ICU. This is our government hospital. There were no charging points. They say take hot fermentation, but there were no plug points given even to charge our phones to get in touch with our family members because ICU patients, we as family members couldn't leave them. They were not allowing food inside because they wanted to give the Sodexo, the company that has got the agency, they wanted to give them business, make their canteen run over there. And food was just left outside. Home cooked, all important ingredients which were good for the patients were left outside, for just to rot or to take away. This is our present scenario, how they've been treating us. And oxygen, don't even talk about it. A lot of people had to buy oxygen from outside and bring it in. So this is what, our ex-governor said. That he opened up and the whole thing and said, this is what people faced. And today we can see that, everyone is here today agitated. We are all here because when an ex-governor says that, this is wrong and the corruption level of the BJP government is so high, this has to stop. And this is why we have come forward right now to say that he has to resign. CM Pramod Sawant has to resign because he failed as a CM. All the time he given fake promises. He's got a lot of death cases on his name because all our dear ones have lost their lives. So, this is our protest and this is how people are treated. We don't have democracy left anymore. When we are not... आम्ही ह्या घटनेचो निषेध करतात आणि सरकाराक सांगो सोदतात की तुम्ही लोकशाही पद्धतीन काम करात म्हणून. निषेध धरणां हे सगळें चालू आसतलें. पण आयज गव्हर्नरान मेघालयाच्या गव्हर्नरान जो काल स्टेटमेंट केलो, इंडिया टुडेक जो स्टेटमेंट दिलो, जो इंटरव्यू जालो, तातून देशांत ह्या देशा भितर एक अशी गजाल घडल्या की यादी दवरपा सारकी. बीजेपीचे सरकार हांगा आसा, बीजेपीने अपॉइंट केल्लो. मेरा नाम सुरेल तिलवे है, एडवोकेट सुरेल तिलवे, और मैं आम आदमी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ गोवा का. आज की जो घटना है उसको आप कैसे देखते हैं? अभी तक आप थाने में हैं, इस घटना को किस पे जोड़ते हैं? गोवा का नाम आज बहुत ख़राब हुआ है बीजेपी सरकार के कारण. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं गोवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के, करप्शन के, तो इसकी वजह से आज पूरा गोवा डिफेम हुआ है. सभी गोवा के लोगों को ये सहना पड़ रहा है क्योंकि नेशनल लेवल पे आज हमको सुनना पड़ रहा है. कोविड के टाइम पे जो ये सब हुआ है, ये भ्रष्टाचार का सब केसेस हुआ है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए. सेकेंडली, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. कांग्रेस ने भी बहुत सारे करप्शन किए हैं और इसी वजह से हम लोग आज देख रहे थे कि कांग्रेस के जो करप्शन में माहिर लोग हैं, दिगंबर कामत, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं थे क्योंकि उनके कार्यकाल में कितने सारे करप्शन के केसेस. So I would like to wish all my fellow Goans a very happy Diwali and very prosperous and happy Diwali. Thank you. तो लोगों का आज जो मामला बहुत हो गया,
अच्छी तादाद में लोग आ गए थे आज आज़ाद मैदान में। तो हम लोग वहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएम के घर तक वहाँ से। तो पुलिसों ने हमको वहाँ पे बीच में रोक के हमसे लाठीचार्ज किया और बोला गया अभी यहाँ पे हमको उठा के लाए हैं और बोला गया कि हम लोग ने ऑफेंस किया है, मतलब मारपीट की है पुलिस के साथ में, तो वो चार्ज अलग लगाया है। वो बात चल रही है अभी एडवोकेट से। तो इस कारण हमारी जो सरकार है आज गोवा की बीजेपी की सरकार, सीएम हमारे वो थोड़े घबरा गए हैं। तो इसीलिए हम लोग को आज यहाँ पे रात भर रखा है, वरना कोई भी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, वो लोग हमेशा छोड़ देते हैं शाम तक। लेकिन हम लोग को आज रात भर रखने का प्लान किया गया है सीएम ने। तो सीएम ने भी ये भी बोला है कि अगर हम लिख के देते हैं कि हम लोग अगले बार से प्रोटेस्ट ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमको छोड़ा जाएगा। लेकिन हमने बोला कि हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल था, हमने कोई वॉयलेंस नहीं किया है, तो हम लोग आगे से हम लोग ऐसा नहीं लिख के नहीं दे सकते। आप चाहिए तो हम लोग हमको रात भर यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसी बात पे हम लोग वॉलंटियर सब लोग यहाँ पे आज हैं, पुलिस स्टेशन में सब बैठे हैं। तो यही बात बोलनी थी और हम लोग को यही बोलना चाहिए। नमस्कार। जिस तरह से आज आपको डिस्टेंस किया गया है प्रोटेस्ट का, आपका क्या रणनीति रहेगी? अभी तक आप पुलिस स्टेशन में हैं, कैसे देखते हैं इसके खिलाफ? नहीं, एक्चुअली हमें अभी तक ठीक से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जो न्याय की प्रक्रिया होती है वो नहीं चल रही है, राजनीति चल रही है। तो यहाँ बिठा के ऐसे ही यहाँ रखने की कोई साजिश है। लेकिन हम लोग कोई मतलब हम लोग कोई कांग्रेस पार्टी या और कोई पार्टी नहीं है जो इनसे डरेंगे। हम आम आदमी पार्टी है, हम लोग एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम लोग भ्रष्टाचार विरोधी, हम लोग पहले अनशन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, मेमोरेंडम्स देते थे, अभी राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में ही राजनीति कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत रिज़ाइन करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर ये अपना स्टैंड नहीं बदलते हैं, इसी तरह से रहते हैं, तो आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति? हाँ, आगे की रणनीति तो प्रमोद सावंत जी तय करेंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी तो हम लोग पुलिस स्टेशन में यहाँ बैठे हैं, पूरी रात यहाँ रुकने की तैयारी की है। अगर वो हमको जाने देते हम लोग जाएंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमसे कुछ एक मतलब अंडरटेकिंग मांगा गया कि हम लोग इसके बाद कोई अनशन नहीं करेंगे या कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका कोई सवाल नहीं है। हम लोग अपना वी आर एक्सप्रेसिंग आवर डेमोक्रेटिक वॉइस और उस आवाज़ को प्रमोद सावंत जी कुचल नहीं सकते। जैसे वो सत्यपाल जी की आवाज़ कुचल नहीं सके और सत्य बाहर निकला, वैसे हम लोग सत्य गोवा में बाहर निकलते रहेंगे।